Okay. A charged body dash an uncharged body towards it. This one is charged body, this one is uncharged body. They are different, not similar. So different charges attract each other. So the answer is attracts. A charged body attracts an uncharged body towards it. Okay. To move a loaded trolley, we have to dash it, we have to push it. अगर एक ट्रॉली जो कि लोड हुआ है उसको अगर मूव करना है तो आपको क्या करना है, पीछे से जाकर उसको पुश करना है. सो टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. लुक एट द क्वेश्चन. ओके, हियर इज द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट and here is also the north pole of another magnet. They are the similar pole. As you know that similar poles are repel each other. You already read it in class 6. Okay. Fun with magnets chapter. Chapter's name is Fun with Magnet and this chapter belongs to class 6. You already read about it. Similar poles repel each other and dissimilar poles or different poles attract each other. So here is similar pole present, north pole, they repel each other. If they are different then they attract each other, but here is the similar poles. The north pole of a magnet repel the north pole of another magnet because of the similar pole. As you already read about, similar poles are repel each other and dissimilar poles are attract each other. Okay, clear about it? Okay, jump to next question. That is question number 4. Okay. An archer stretches a bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Okay. Do you know about the archery game? आप लोग archery game के बारे में जानते हो? Yes. It needed a bow and an arrow. Okay. So, based on these statements, you determine the answer of these following questions. Okay. Options are here. You find out the answer from these options. Okay. So, read it again. An archer stretches her bow while taking him at the target. Wait a minute. See. In first case, the shape of a bow is like this. But when you stretch it, it changes its shape. It changes its shape like this. Okay. So, based on the statements, you find out the answers. Okay. First, options are muscular contact, non-contact, gravity, friction, shape and attraction. And the first question is, to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its. बो को ऐसे इस पोजीशन से इस पोजीशन को स्ट्रेच करने के लिए आर्चर अप्लाई से फोर्स दैट कॉजेस ए चेंज इन इट. यहाँ पर जो चेंज हो रहा है शेप, सी द बो in first case and second case. In first case and second case, it changes its shape. So, for changing its shape, the archer applies a force on it. Okay. What is the force? Because when you stretch the bow, you just use your muscles. So, that is muscular force. Or to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its what? Only shape. जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो इसका शेप चेंज हो जाती है. सो द आंसर इज शेप ओनली. टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेस ए चेंज इन इट्स शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो. बो को स्ट्रेच करने के लिए आर्चर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. Example of dash force. Muscular force, because you only apply your muscles here. So muscles की apply करके आप force apply किए तो this force is called as a muscular force. Okay.
Next question. The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a dash force. The type of force. You already know about the type of force. There is two types of forces, that is contact force and non-contact force. And in second question, you read about the muscular force. The force applied by the archer to stress the bow is an example of muscular force. So muscular force belongs to which type of force? Only contact force. मस्कुलर फोर्स जो है, क्योंकि ये एक टच के थ्रू होती है. आप बो को टच करते हो, आर्चरी को स्ट्रेच करते हो, तभी जाके ये होता है. दैट्स वाई मस्कुलर फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, सो द आंसर इज द टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो is an example of a contact force, because muscular force only belongs to contact force. बगैर टॉस कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर. Nothing is possible बगैर टच, without touch. Next question. While the arrow moves towards its target, टारगेट की तरफ जब एरो मूव हो रहा है, when the arrow moves towards the target, the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air. ये वाला आंसर तो क्लियर है, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर. जब एरो टारगेट के टुवर्ड्स जा रहा है तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ रबिंग होके जाएगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मीन्स व्हाट? फ्रिक्शन मीन्स रबिंग. ओके, सो दिस आंसर इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट डेश? While the arrow moves towards its target, जब एरो टारगेट के तरफ जा रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू, यस, ग्रेविटी. यस, ग्रेविटी. उस वक्त एरो के ऊपर आप तो उसको छोड़ चुके हो ना. सो विच फोर्स अप्लाइड देयर? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू ग्रेविटी. टेल मी, एनी डाउट हियर? Okay, read the following exercise and after that you will find your doubts. जब आप इसको रीड करोगे तब भी आपको डाउट्स मिलेगा. इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी अगेन विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन. ओके, सो जम्प टू क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट. इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स. आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करना है. यू जस्ट फाइंड आउट टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज द एजेंट विच एक्सर्टिंग द फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है. सेकेंड थिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है. कौन कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है. यू जस्ट फाइंड आउट द टू थिंग्स. हियर इज द स्टेटमेंट, और इन एवरी स्टेटमेंट you find out the agent exerting the force and on which it applies the force. Also state the effect. After exerting the force, you also tell the state of the effect. Force apply करने के बाद effect क्या होती है, आपको वो भी आप बोलना है. Very easy questions. Only you understand it. जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, इफ़ यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन चाहे किसी भी कोने से आए, यू अटेंड इट. इफ बेस इज क्लियर देन एवरीथिंग इज क्लियर. सो ऑलवेज ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ओके, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस. आपको एक लेमन पीस को लेना है, यू जस्ट स्क्वीज इट लाइक दिस. ओके, सो व्हेन यू वांट टू स्क्वीज ए पीस ऑफ लेमन, you apply the force by using your fingers. So here the agent exerting the force, जो कि लेमन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, वो नथिंग बट आवर फिंगर्स. अब हमारे जो फिंगर्स है वही फोर्स अप्लाई करेगा. किस पर अप्लाई करेगा? लेमन पीस के ऊपर. सो द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स इज लेमन. फिंगर्स फोर्स अप्लाई करेगा और किसके ऊपर करेगा? लेमन के ऊपर करेगा. Okay, so when you apply the force on lemon, what is the effect here? लेमन पीस जो है, जब आप इसको ऐसे स्क्वीज करोगे, लेमन पीस जो है, it changes its shape, and when you squeeze the lemon piece, the juices comes out also. Shape changes and juices also comes out. Okay, next question.
taking out paste from a toothpaste tube. At every morning, you want to toothpaste tube. ओके क्योंकि सुबह सुबह आपको ब्रश करनी होती है. जब जब आप ब्रश करोगे तब तब आप क्या वांटिंग करोगे? ब्रश टेस्ट ट्यूब, टूथपेस्ट ट्यूब. ओके, सो पेस्ट को निकालने के लिए टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब, आपको क्या यूज करना है? एजेंट क्या है? यस, आवर फिंगर्स. यूजिंग योर फिंगर्स यू taking out the paste from the test tube, toothpaste tube. Okay, sorry, toothpaste tube. So here the agent is our fingers. And किस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे? Yes, toothpaste tube. Toothpaste tube के ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना है. Okay. So what is the effect here? When you apply the force on a toothpaste tube, the toothpaste tube shape changes, and as a result, yes, as a result, paste comes out that you used for your brush. Okay, very good. Next question is, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. Acha, see, a load suspended from a spring while its other end is on a hook. Okay, first you read the question and clear the concept. लोड जो है वो एक स्प्रिंग के साथ सस्पेंड हुआ है और इसका अदर एंड जो है वो एक हुक के जरिए एक वॉल के साथ फिक्स हुआ है. सी दैट डायग्राम. दिस वन इज द स्प्रिंग. ये जो एक पीस है वो एक वॉल के साथ सस्पेंड हुआ है और जो दूसरा पीस है वो एक लोडेड ट्रॉली के साथ ऐड हुआ है. सो ट्रॉली जो है वो लोडेड ट्रॉली जो है वो क्या है? वो हाँ, लोड जो लोड है वो इसके ऊपर अफेक्ट करेगा और ये तो यहाँ पर हैंगिंग के थ्रू है. तो व्हेन द लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, it pressures the spring and its other end is on a hook, okay, fixed to a wall. So here what happened? Shape of the spring changes or elongation of spring on a suspension of load. क्योंकि लोड जो है इस पर प्रेशर दे रहा है और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? इसका शेप चेंज कर देगा. चेंजेस इट्स शेप एंड इट elongated. So here the agent exerting pressure is the load which is suspended from the spring and किस पर act कर रहा है? The load is agent exerting the force. Yes. Here the agent exerting force, जो force apply कर रहा है वो है the load which is suspended from the spring and the object on which it acts, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इज द स्प्रिंग. दैट्स व्हाई द स्प्रिंग चेंजेस इट्स शेप. ओके देन. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. An athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. Everyone knows about the high jump game. There is a hurdle also and आपको क्या करना है? उस हर्डल को क्रॉस करके जाना है. When an athlete making a high jump, उसके लिए ये क्लियर है कि वो बार को जंप करके एक सर्टेन हाइट में एक बार प्लेस होगा, उसको जंप करके उसको जाना है. दिस गेम इज कॉल्ड एज हाई जंप एंड everyone knows about long jump, high jump, hurdles. Okay, so find out the agent exerting the force. Okay, first you find out the agent exerting the force. After that, the object on which the force applies. Okay, so read the sentence for it. An athlete making a high jump to clear the bar at a certain height, जो कि एक बार है like this, ऐसे होगा. Here is a pole, here is a pole. एक certain height पर एक बार प्लेस होगा. जब एथलीट रन करके जाएगा ये उस बार के ऊपर क्रॉस करके जाएगा. दिस वन इज कॉल्ड एज high jump. So when an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height, he or she used
his or her muscles for it. Yes. When an athlete making a high jump, he or she only used his or her muscles only. Okay, so agent exerting the force is muscles of athlete. Yes, yes, muscles of athlete. मसल्स ऑफ एथलेट तो यहाँ पर एक्सर्टिंग ऑफ फोर्स हो गया. नेक्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट एक्ट्स. मसल्स किस पर एक्ट कर रहा है? खुद एथलेट के ऊपर, एथलेट हिमसेल्फ. यस, जब एक एथलेट हाई जंप को क्लियर करने के लिए बाहर को कूदने की कोशिश करेगा, तब उस वक्त तो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? उसी के मसल्स. किसके ऊपर अप्लाई करेगा? उसी की बॉडी पर, जिसकी वजह से वो जंप करके जा पाएगा. Okay, now we're clear. Okay, read it again and find out where your doubts. Okay, next question number 6. Okay, do you know about blacksmith? कुम्हार जो लोहे की काम करते हैं. Okay, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. Whenever a blacksmith wants to prepare or wants to making a tool, he or she क्या करते हैं वो? फर्स्ट, यस, वो सबसे पहले आयरन को हीट करते हैं. ओके, whenever a blacksmith wants to making a tool, वो सबसे पहले वो आयरन को हीट करते हैं. आफ्टर दैट शेप देते हैं. आपको हैमर चाहिए या फिर आपको कुछ भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए आयरन वाला, तो वो सबसे पहले आयरन को हीट करते हैं. आफ्टर दैट अपने अकॉर्डिंग उसको शेप देते थे. ओके, सो हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन? ये जो हैमरिंग की जाएगी उस वक्त, हैमरिंग की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो आयरन पीस के ऊपर कैसे अप्लाई करेगा? Simply, the force due to hammering causes the change of the shape of iron. फर्स्ट क्या करना है? ब्लैकस्मिथ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैकस्मिथ हीटेड द टूल, हीटेड द आयरन पीस. जब आयरन को हीट की जाएगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी. आफ्टर दैट दे हैमर इट, एंड बाय हैमरिंग इट causes the change in the shape of the iron. हैमर के जरिए ये क्या होगा? आयरन का शेप चेंज कर देगा. बिकॉज एट दैट टाइम आयरन इज इन सॉफ्ट केस. आयरन उस वक्त सॉफ्ट होगा बिकॉज ऑफ द हीटनेस. एंड आयरन कैन बी मॉड्यूल्ड इन द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड टूल. आपको जो भी टूल्स चाहिए एज पर रिक्वायर्ड, आयरन कैन बी मॉड्यूल्ड इन द शेप. आपको हैमर चाहिए तो वो हैमर का शेप दे देंगे. आपको प्लस चाहिए तो वो प्लस का भी दे सकते हैं. आप जो भी चाहिए, यू नीड इन नीडल, देन नीडल के अकॉर्डिंग वो शेप दे सकते हैं. जिसका भी शेप देना हो, एट फर्स्ट यू हीट द आयरन. व्हेन यू हीट द आयरन, इट कम्स टू द सॉफ्ट स्टेट. After that, you hammer it and modulate it in the shape that you want. Okay. Next question. C. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been daubed with a piece of synthetic cloth. Simply, you need for this experiment you only need a synthetic cloth and a balloon piece. Okay. आपको क्या करना है? सबसे पहले rub the inflated balloon. Okay, rub the inflated balloon with a piece of synthetic cloth. So when you rub the balloon with a synthetic cloth, it gets some charges in it. Okay, जब आप इसको सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रबिंग करोगे, ये उससे कुछ चार्ज कलेक्ट कर लिया होगा. After that it was found that the balloon sticks to the wall. रबिंग करने के बाद जब आप उस बैलून को एक वॉल के पास ले जाओगे ना, वो वॉल के साथ चिपक जाएगा. यस, इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल. वो चिपक जाएगा. व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल? वॉल जो बैलून को अट्रैक्ट कर लिया, यस, विदाउट मीडियम, व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, फॉर देयर अट्रैक्शन? हाँ, अगर आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन its answer, if you want to find out this answer, you read the first statement. And the first statement is
When an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. First, you rub the inflated balloon with a synthetic cloth. After that, it sticks to the wall. When you rub with synthetic cloth, it gets some charges. By rubbing, some charges are created. So this one is related to which force? Yes, electrostatic force. Okay. Next question. Question number 8. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Okay. So question number 8. Name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. आपके हाथ में है और ग्राउंड लेवल से ऊपर है. And the plastic bucket also containing water. It is not empty. So at that time, which force is acting on the plastic bucket? Just name the forces. एक plastic bucket which containing full of water, which is also in your hand and above ground level. At that time, a force is applied on it. You only tell the name the forces. You only tell the name of forces that acting on the plastic bucket. Which force? When you pick up a bucket of प्लास्टिक बकेट विच कंटेनिंग वाटर, आपने कभी एक क्या बोलते हैं उसको, एक टॉप को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाया है? यस, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर आल्सो एट दैट टाइम. अच्छा, उठाया है आपने, तो कौन से फोर्स उस वक्त अप्लाई होती है उस पर? और आपकी बड़ी पार्ट, कौन से बड़ी पार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आती है? यस, अपर आर्म. ओके, यस, मस्क्यूलर फोर्स. बिकॉज सबसे पहले जिस पर यह अफेक्ट करती है ना, वो हमारे मसल्स होते हैं. सो मसल्स रिलेटेड फोर्स इज कॉल्ड एज मस्क्यूलर फोर्स. ओके, सो द फोर्स इज मस्कुलर फोर्स. ओके, मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड. Discuss why the forces acting on the bucket don't bring a change in its state of motion. अभी हमें क्या डिस्कस करना है? Now we discuss when we pick up the bucket of water from the ground level, which is picked by our hand. At that time, the shape of bucket does not changes. Why? Why the forces acting on the bucket don't bring a changes in state of motion? State of motion में क्यों नहीं चेंज होती है? रीजन क्या है? One thing left here. Actually, question asks name the forces. Means more than one force acting on the plastic bucket. One is the muscular force and other is funny questions it is also. जब आप एक वाटर बॉटल को ऐसे नीचे से ऊपर उठाते हो, तभी आपकी मसल्स के द्वारा उठाते हो. सो वन ऑफ द फोर्स इज मस्कुलर फोर्स एंड द अदर फोर्स इज यस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स. अगर उस वक्त आप फोर्स बॉटल को छोड़ दोगे तो वो नीचे गिर जाएगी. उस वक्त अगर आप प्लास्टिक बकेट को छोड़ दोगे तो वो नीचे गिर जाएगी. क्यों? ऊपर क्यों नहीं उठेगी, नीचे ही क्यों गिरेगी? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे कि मैं बोली थी कि एवरीवन सॉस दैट एप्पल फॉल्स बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई. एप्पल जब गिर रहा है वो नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. Everyone knows about earth as our earth has gravitational force. So the two forces here is one is our muscular force and the other is gravitational force which acting downward. अगर उस वक्त आप छोड़ देते हो तो बकेट ऑफ वाटर नीचे ही गिर जाएगी. So next discuss why the forces means muscular force or gravitational force acting on the bucket at that time. The two forces acting on the bucket is one is muscular force and the other is gravitational force. So दो फोर्स काम करने के बावजूद it don't bring a change in its state of motion.
Here two force works on the bucket, but both the forces don't bring a change in its state of motion. Why? What is the reason behind it? Because both of the forces don't bring any change in the state of motion because they are acting in equal and opposite direction. एक ऊपर जा रहा है, जब आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बकेट को ऊपर खींच रहे हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेम अमाउंट का नीचे उसको अट्रैक्ट कर रहा है, सेम अमाउंट. सो बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. एक ऊपर की तरफ आ रहा है मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ आ रहा है. तो क्या हो रहा है उस वक्त? दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट. अगर फोर्स का अमाउंट जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, सो बोथ द फोर्सेस कैंसिल टू ईच अदर. दोनों की इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा एट दैट टाइम. अगेन सी इट अगेन, ओके, एंड क्लियर योर डाउट्स. When you pick up a plastic bucket which containing water held above ground level, okay, उस वक्त आप उसके ऊपर you applied muscular force on it, and at the same time earth applies gravitational force on it. But when you apply muscular force, ये ऊपर की तरफ आएगा, and when the earth applied gravitational force on it, वो downwards हो जाएगा, एक upward एक downward. Okay, so both the forces is amount of both the forces are equal and which is in opposite direction, so they cancel each other's effect out. That's why it don't bring a change in its state of motion. यही reason है जो इसका state of motion change नहीं हो रहा है, because both the force amounts equal and opposite. Okay, next question. A rocket has been fired upwards and launch a satellite in its orbit. रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. जब जब भी आपको एक सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, आपको रॉकेट को फायर करना होता है, और वो किस तरफ जाती है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. अपवर्ड्स व्हेन इट हैज सम डिफेक्ट इट कम्स टू डाउनवर्ड्स. जब इसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो वो वहीं से नीचे गिर जाएगा. ओके, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड. लॉन्चिंग पैड मतलब जहाँ से आप रॉकेट को छोड़ोगे उस जगह को बोला जाएगा लॉन्चिंग पैड. तो लॉन्चिंग पैड छोड़ने के बाद रॉकेट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहा है. नेम द टू फोर्सेस ओनली. एक तो लॉन्च जब जाएगा एयर के साथ रॉबिंग होता जाएगा, तो वन ऑफ द फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एयर, क्योंकि वो एयर के साथ रबिंग करते जाएगा, फ्रिक्शन करते जाएगा. सो वन ऑफ द फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर. एंड द सेकेंड फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. उस वक्त दूसरा फोर्स भी उसको खींच रहा है. अगर उस वक्त उसका कुछ डिफेक्ट हो गया तो वहीं से ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ये नीचे गिर जाएगा. सो द टू फोर्सेस इज, वन इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड दूसरा इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड थिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वी प्रेस द valve of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the valve, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, read the question. Read the question first. For this question, मैं आप लोगों को एक सिंपली एग्जाम्पल देती हूँ. आप सब लोगों ने जो किड्स जो मेडिसिन लेते हैं वो ड्रॉपर तो देखे ही होंगे. आप लोग डायरेक्टली मेडिसिन ले जाते हो. यू ऑल टेक डायरेक्टली मेडिसिन डायरेक्टली बिकॉज यू आर नॉट किड्स, यू आर नॉट बेबीज. ओके, बट अगर बात करेंगे बेबी लोगों की, बच्चे लोगों की, पूरा जो कि 1 ईयर के नीचे हैं, उनको एक ड्रॉपर के ज़रिए मेडिसिन दी जाती है. सो जब आप उस ड्रॉपर की ऑपोजिट को ऐसे पुश कर लेते हो तो इसके जो नोजल से यहाँ से एयर चला जाता है, और जब आप इसको रिलीज़ कर लेते हो तो वो मेडिसिन जो है वो ड्रॉपर की अपर पार्ट तक आ जाती है और आप उसको लेकर बच्चे लोगों को दे देते हो. दिस क्वेश्चन इज सेम. जब आप एक ड्रॉपर की बल्ब पोजीशन को, इस पोजीशन को, जब आप इस ड्रॉपर की बल्ब पोजीशन को क्या करोगे? प्रेस करोगे और पानी में रख के उसको प्रेस करोगे. व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विथ इट्स नोजल, दिस वन इज नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. क्योंकि वो वाटर के अंदर होगा, बबल्स बबल्स हो के एयर जाएगा.
वो बबल्स के ज़रिए आपको पता चलेगा कि एयर पास हो रहा है। जब आप इसको छोड़ दोगे इसे, तो इसके अंदर देखिए पानी ऊपर तक आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है? सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस हैपेंस। बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस हैपेंस, अदरवाइज वो नहीं होता। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर, जो एयर प्रेजेंट है वहाँ पर, वो एयर प्रेशर देने की वजह से ये हो रहा है। ओके, सो you read the exercise and try to understand it. If you have any doubt, then ask me. Okay, don't feel any type of agitation. Okay, thank you, bye bye. If you like my video, then please subscribe and share. Okay, thank you.